نہیں ہے پر پھر بھی وہ ورشپ کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے عبادت کرتے ہوئے، اگر وہ پنڈال میں کر رہے ہیں، بارش آ رہی ہے تو بارش ہو رہی ہے وہاں پر، پھر بھی وہ عبادت کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس اس طرح کی خوبصورت بلڈنگز نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خدا میں خوش ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ خدا میں ہر طرح کے حالات کے لیے خوش ہونا چاہیے. آمین. ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو. کبھی کبھی اس طرح کے بھی حالات میں سے گزرے تاکہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ جو ہیں وہ مس فارچونیٹ ہیں، جن کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں یا جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں. آمین. تو خدا کا شکر کرتے ہیں. ہمیں آج اس بات کا بھی تھوڑا سا احساس رہے گا کہ پاکستان میں کتنی الیکٹرسٹی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے دوران لوگ کیا کرتے ہیں، گرمی میں کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں. خدا ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے، لیکن ہم جب ایماندار ہیں تو ہمارا کام ہے ان کو ریسیو کرنا اور خدا کی شکر گزاری کرنا. آمین. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہم اچھے سے اچھی چیزوں میں ملتی رہے، ہم صرف اسی وقت خدا کے شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں اچھی جاب دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، خوبصورت گھر ہے، گھر میں گرمی نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں، ایسا فیل نہیں ہوتا آپ کو جو ایٹماسفیئر جو انوائرمنٹ کی تپش ہے یا جو اس کی پرابلمز ہیں وہ آپ فیل نہیں کرتے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے اس لیے کہ ہم خدا کے شکر گزار رہیں ہر ایک بات میں سے. آمین. آئیں ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے، بڑی توجہ سے خدا کا کلام سنیں گے. آمین. آپ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ آمین. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ انسان جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. We cannot serve two masters. ہم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. کلام ہمیں سکھاتا ہے ایک ہی کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، اور اسے چوز کرنا ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے. وہ ہماری چوائس ہے کہ ہم نے کسے چوز کرنا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے. خدا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، خدا کا پاکرو کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا ہے، لیکن چوائس جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے، جو بھی آپ نے راستہ چوز کرنا ہے. کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ انسان دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. آج ہم انسان کا خدا کے ساتھ تعلق اور مٹیریلسٹک چیزیں یعنی دولت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق، اس کے بارے میں اس کے اوپر غور کریں گے اور کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، گوسپل آف لوک چیپٹر 16، اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. نکالیں تو آمین کہیں تاکہ ہم سب مل کے پڑھ سکیں گے. خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. خدا کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 6واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. ان حوالہ جات کو نوٹ بھی کر لیجئے گا، آپ گھر میں جا کے ایک دفعہ پھر ان کو پڑھ سکتے ہیں. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. آمین. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت.
हम सब इस दुनिया में रहते हैं और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी हैं, और खुदा ने उसके साथ साथ हमें बहुत सारी बरकतें दी हैं। खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, शायद वो दूसरे लोगों के पास ना हो। खुदा ने आपको सरफराज किया है, खुदा ने आपको एक अच्छी ज़िंदगी बख्शी है। ये सारी बरकतें जो हैं ये खुदा की तरफ से हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है हर अच्छी बख्शिश जो है वो ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है। क्या लिखा है जी कलाम मुकद्दस में? हर अच्छी बख्शिश जो है, एवरी गुड गिफ्ट जो है वो कहां से है? ऊपर से है, यानी नूरों के बाप की तरफ से हमें मिलता है। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और खुदा हमारी जरूरियात जिंदगी को पूरा करता है। आमीन। अब ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हैं? ये खुदा ने हमें एक जिम्मेदार शख्स होते हुए ये सारी बरकतें दी हुई हैं। अब खुदा क्या चाहता है कि इन बरकतों के वसीला से इनको इस्तेमाल में लाते हुए हम खुदा की सिताइश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसे तमाम चीजों से पहले रखें। उसका दर्जा जो है वो हमारी जिंदगी में पहले रहना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि इंसान की नेचर है कि वो क्या करता है, वो चीजों को पहले ले आता है। वो फर्स्ट नंबर पे अपनी जो जिस्मानी बरकतें हैं उनको ले आता है पहले नंबर पर। सो बजाय खुदा को पहले नंबर पर रखने के, अव्वल दर्जा देने के, वो क्या करता है जी? अपनी बरकत को, अपनी वो जो बरकतें हैं, खुदा ने आपको बरकतें इसलिए दी हैं ताकि आप उन बरकतों के वसीला से खुदा की खिदमत कर सके, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। लेकिन इंसान इसके ऑपोजिट जाता है और उसी के ताल्लुक से हमें यहां पर एक एग्जाम्पल भी मिलती है। अगर आप पढ़ें 16वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ें तो हमें यहां पर एक तमसील जो है वो बताई गई है और उसके जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि इंसान की नेचर क्या है और इंसान क्या करता है। सब शायद एक जैसे नहीं, लेकिन मोस्टली हो सकता है ऐसा ही सोचते हो। आए हम पढ़ते हैं लूका की अंजील का 16वां बाब पहली आयत से पढ़ते हैं। जी पास्टर इरफान अगर आप पढ़ सकते हैं। माइक नहीं? हाँ जी, माइक ले लें, खड़े होकर पढ़ना। पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। लूका तबीब की अंजील उसका 16वां बाब उसकी पहली आयत से। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। हाँ जी, गौर कीजिएगा, किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था, यानी किसी एक शख्स को खड़ा किया और उसको तमाम तर चीजों के ऊपर क्या कर दिया? मुख्तार बना दिया कि वो हर चीज को देखे, उसकी टेक केयर करे और जितनी भी मैनेजमेंट है वो उसको डील करे। हाँ जी, उसके लोगों ने उससे शिकायत की, यानी मालिक को कुछ लोगों ने क्या की? शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। यानी क्या करता है जी? तेरा माल क्या करता है? वेस्ट करता है, डैमेज करता है, नुकसान करता है, चोरी करता है या उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता। आगे पढ़ेंगे। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ। बस उसने उसको बुलाकर, यानी मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर जिसे उसने मुख्तार बनाया था उसे कहा कि जो तेरे हक में मैं सुन रहा हूं ये क्या चीजें हैं, ये क्या बातें हैं? अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। क्यों मुख्तार नहीं रह सकता? क्या वजह है? रीजन यह है कि ये दयानतदार नहीं है। वजह यह है कि ये फेथफुल नहीं है, ईमानदार नहीं है, ये अनफेथफुल है, ये ऑनेस्ट नहीं है। जो जिम्मेदारियां, जो चीजें इसको दी गई हैं ये उनको पूरा तरीके से कर नहीं रहा। खुदा ने हमें जमीन पर रखकर बहुत सारी बरकतें दी हैं और उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं। बरकतें इसलिए दी हैं ताकि हम उन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।
खुदा ने हमें सबसे कीमती चीज एक दी है और वो है टाइम। टाइम जो है वो बहुत कीमती चीज है। टाइम क्या है जी? बहुत कीमती है। टाइम इज अ मनी। ऐसे ही है जी, आप काम करेंगे आपको पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे आज के दिन तो आपको डबल मिलेंगे। सो टाइम जो है वो सबसे कीमती चीज है। खुदा ने आपको दी है ये बरकत। आप बताइए, आप इस टाइम को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप इस टाइम को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं खुदा के दिए हुए टाइम को राइट तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं? खुदा ने आपको एंटरटेनमेंट करने से मना नहीं किया। खुदा ने आपको बच्चों की केयर करने से मना नहीं किया। खुदा ने अपनी फैमिली की टेक केयर करने से मना नहीं किया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपको जो टाइम मिला है वो खुदा के लिए आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको? मोस्टली लोग आज जो इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक इस टाइम को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जी? ड्यूटी पे, थोड़ा फैमिली को, और उसके बाद सोशल मीडिया को, अपने मोबाइल को। घंटों बैठ के अपना मोबाइल देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं, ड्रामे देख सकते हैं, और सोशल मीडिया जो बड़े अच्छे लगते हैं देखने के लिए, उसके ऊपर वीडियोस, छोटी शॉर्ट क्लिप और ये सारी चीजें आप देखते हैं। आपको पता है उनका सारे सोशल मीडिया से जहां देखेंगे आप, लोग आपको वो करते हुए नजर आएंगे, छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप बनाते हुए नजर आएंगे, ये सारे काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो टाइम खुदा का है वो क्या प्रॉपरली तौर पर आप उसको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? ये मैं एक चीज के बारे में भी बात कर रहा हूं, वापस जाते हैं वहां भी बताता हूं। सो एक्चुअली टाइम आपका जो है वो मनी है, ये बड़ा कीमती टाइम है, और खुदा जो है उसने आपको बहुत कीमती चीज बख्शी है और वो टाइम है। और टाइम से आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेज करना जानते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो टाइम खुदा को देने वाला है, इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा, जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। यानी जो दुनिया के कामों के लिए टाइम मिला है वो आप दुनिया के कामों को दे दीजिए, जो खुदा के लिए मिला है वो किसको दे दे? खुदा को दे दे। लेकिन जहां पर खुदा की बारी आती है वहां पर इंसान चीट करना शुरू कर देता है। आप में से हर कोई अपने ऊपर खुद सवाल कर सकता है और पूछ सकता है कि क्या मैं वाकई दयानतदार हूं खुदा के दिए हुए टाइम में से? मेरी जिंदगी के अंदर एक दिन का 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं। 10% के हिसाब से अगर मैं लूं, अगर 5 का हिसाब लगाएं तो इसका आधा कर दें, चलो 5 का लगा लें हिसाब। क्या मैं 5% भी खुदा को रिटर्न कर रहा हूं वो टाइम जो उसने मुझे दिया है? क्या उसकी खिदमत के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं? क्या उसके कलाम को शेयर करने के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं? क्या मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने घराने के लिए दुआ करने के लिए टाइम निकाल पा रहा हूं? क्या मैं कलाम को सीखने के लिए, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, जो कीमती मोतियों से कहीं ज्यादा कीमती हैं, क्या मैं उनको टाइम दे पा रहा हूं? मैं अपने दोस्तों को टाइम दे रहा हूं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूं, अपने बच्चों को टाइम दे रहा हूं, अपनी जॉब पे सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि जॉब पे आपका टाइम सबसे ज्यादा जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने चाचे बाबे मामे सबको टाइम दे रहा हूं। हर बंदा जिसका फोन आता है मैं उसे रिप्लाई करता हूं, रिस्पॉन्स करता हूं। पर क्या मैं खुदा को भी रिस्पॉन्स कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? क्या यहां पर मैं ऑनेस्ट हूं, ईमानदार हूं कि मैं खुदा को उसका टाइम दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? इसी तरह खुदा ने आपको और भी बहुत सारी बरकतें दी हैं। खुदा ने आपको रुपया पैसा दिया है, आपको दौलत दी है। क्या मैं उस दौलत को सही तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस दौलत को कहीं और वेस्ट कर रहा हूं? बहुत सारे लोग हैं जो नशा करके अपना पैसा तबाह कर रहे हैं, शराब पीने के लिए, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपना पैसा जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। अपनी हेल्थ का भी नुकसान, अपने पैसे का भी नुकसान, और अपने टाइम का भी जो है नुकसान है। पबों में जाकर जो वक्त आप खुदा की हजूरी में गुजार सकते हैं वो वक्त जाके पबों में निकाल देते हैं।
वहां पर पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, दे देते हैं लोगों को, इस तरह वेस्ट कर रहे हैं। क्या दयानतदारी है इनमें? टाइम में, रुपए पैसे में, तंदुरुस्ती में? खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी है, खुदा ने आपको सेहत बख्शी है कि खुदा की खिदमत कर सके आप। क्या आपके बदन से किसी तक गुड न्यूज पहुंच रही है, या सिर्फ लोग देख के आपकी जिंदगी को कहते भाई ये तो दूर ही रहो? कलाम कहता है तेरी जवानी की कोई हकारत ना करने पाए। सो कई दफा लोग भागना शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सारी बातें। सो यहां पर एक ईमानदार नौकर के बारे में हम जो है वो सीखेंगे आज, लेकिन यहां पर कंपेयर करने के लिए हमें एक गैर ईमानदार बंदा, एक ऐसा ईमानदार बंदा, एक ऐसा बंदे के बारे में बात की गई है जो ऑनेस्ट नहीं है, जो फेथफुल नहीं है अपने मालिक के साथ। उसको मालिक ने जिम्मेदारी दी है कुछ करने के लिए, पर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पे निभा नहीं रहा। और आज ऐसा ही है, कलीसिया जो है वो अपने रोल को प्रॉपर तौर पे पूरा नहीं कर पा रही। और फिर क्या होने वाला है? एक दिन आने वाला है जिस दिन वो मालिक तक खबर हर बात की पहुंच रही है, पल पल की खबर उसके पास है। आज आपने कितना टाइम किसको दिया, कितना रुपया पैसा कहां पर लगाया, खुदा की खिदमत के लिए क्या काम किया, खुदा को कितना टाइम दिया, या उसके कलाम को आगे फैलाने के लिए, गुड न्यूज दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या किया। एक एक चीज का हिसाब खुदा के पास लिखा हुआ है। खुदा को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि खुदावंद ये चोरी कर रहा है, खुदावंद ये काम सही नहीं कर रहा, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर। खुदा को बताने की जरूरत नहीं है, खुदा हर चीज से वाकिफ है। आमीन। खुदा से कुछ चीज छुपी नहीं। तो यहां पर लिखा है कि उनको, यहां पे जो हम एग्जाम्पल है उसमें लिखा है, किसी ने उसको बताया कि ये बंदा तेरा पैसा वेस्ट कर रहा है, ये बंदा तेरा जो चीजें हैं इनको, जो तूने जो चीजें का मुख्तार बनाया, उनको ये प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो खुदा ने जिन चीजों का हमें मुख्तार बनाया है, हमें उनको प्रॉपरली इस्तेमाल करना जरूरी है। और यहां पर लिखा, फिर उसको बुलाया गया और उसे क्या कहा गया, भाई तेरे बारे में मैं क्या सुनता हूं कि तू दयानतदार नहीं है, तू ऑनेस्ट नहीं है, तू फेथफुल नहीं है, इसलिए आज के बाद तेरी मुख्तारी जाती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं वो वक्त आने वाला है। मुकाशफा की किताब 22वें बाब में लिखा हुआ है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक, किसके मुआफिक जी? हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब वो वक्त आने वाला है जब मसीह आने वाला है। सो कल को जब मसीह हमसे पूछेगा तो फिर हमें किस तरह जवाब देना है, या क्या जवाब देंगे, ये आप बाखूबी जानते हैं इस बात को, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी को जानता है। अब इस नौकर के बारे में सुनिए, जब नौकर को कह दिया गया कि भाई आज से तेरी मुख्तारी जो है वो ले ली जाएगी, अब खत्म होगी कहानी। आगे देखिए वो क्या करता है। वो अपने आप से कहता है, क्या कहता है जी? क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीन लेता है, मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, भीख मुझसे मांगने में शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं ताकि जब मेरी मुख्तारी माकूफ हो जाए तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दे दें। अब ये नौकर क्या करने लगा जी? होशियारी करने लगा। होने नु जाग आ गई है, क्योंकि अब क्या हो गया, अब मुख्तारी जाने वाली है, अब जो है ओहदा छीनने वाला है, अब जो है प्रमोशन की जगह क्या होने वाली है जी? डिमोशन होने वाली है। अब ये रिवर्स गियर लगने लगा इसको। तो ये क्या हो गया, अब अलर्ट हो गया, एक्टिव हो गया, क्योंकि अब जजमेंट का टाइम आ गया है। अब वक्त आ गया कि जब पूछा जाएगा, अब वक्त आ गया जब हिसाब लिया जाएगा। तो क्या कहने लगा जी? मट्टी नहीं मैं खोद सकता, क्योंकि किसी के अंडर रहना मैंने सीखा नहीं है, किसी के अंडर रह के काम नहीं मैं कर सकता हूं, कोई मेरे ऊपर मालिक हो और वो मुझसे काम करवाए। भीख मैं मांग नहीं सकता, क्योंकि शर्म आएगी, इतने सारे लोगों के सामने मैं सुपरवाइजर था और आज बाहर लेके कटोरा खड़ा हो जाऊं और कहूं मुझे भीख दे, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कल तक मैं बिजनेसमैन था, मैं अपना पैसा उड़ा रहा था, यहां पे लगा रहा था अपनी मर्जी से, आज कैसे खड़ा होकर मैं रोड पे कहूं जी मेरी कोई मदद करे। इसी तरह से यहां पर देखते हैं, फिर वो क्या करने लगा,
उसने मालिक के ही पैसों को लिया और लोगों को उसने क्या कर दिया जी, छोड़ना शुरू किए पैसे। उसने कहा, पढ़िएगा जरा जी 5वीं आयत में, बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा, तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है? उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा 100 मन गेहूं। उससे कहा, अपनी दस्तावेज लिखकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों से के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं जी। अब यहां पर क्या खास बात उसने किया जी, जब उसे पता चला कि उसकी मुख्तारी छिनने वाली है, तो उसने क्या किया जी, जल्दी जल्दी जिनके ऊपर कर्ज था उसके मालिक का, उनको क्या करना शुरू कर दिया जी, उनको साथ फ्रेंडशिप शुरू कर दी। उनको कहा कि अगर मेरे मालिक का आपके ऊपर 50 है ना, तो आप 25 लिख दो, मैं आपको फेवर दे रहा हूं, 25 जड़ा ना वो बाद चो आप वेख लांगे। अगर किसी का 100 आता है तो कहता तू इंज कर 80 लिख दे, 20 जड़ा ना आप बाद चो खाते च क्लियर कर लांगे। ऐसे, क्योंकि अब वो दोस्ती कर रहा है, सलाम दुआ बढ़ा रहा है, ताकि जब मालिक मुझे निकाल देगा तो कम से कम ये तो लोग होंगे जिनके पास मैं जाके कहूंगा कि हाँ भाई, इनके साथ तो मैं कारोबार कर सकूंगा। अब बात सोचने वाली यहां पे खास पॉइंट क्या है, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। इसने होशियारी की है। क्या आज हम अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक, उसकी दी हुई बरकतों के मुताबिक उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जो मुख्तारी हमें दी गई है उसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो अब भी वक्त है, होशियारी करें, जितना बेहतर हम रिजल्ट पैदा कर सकते हैं उसके लिए पैदा करें। आमीन। क्योंकि खुदा जो है वो आपसे मोहब्बत रखता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी जान जो है वो उसका नुकसान हो, या कोई भी जान जो है वो जहन्नम में चली जाए। खुदा कभी भी ऐसा नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता किसी की हलाकत हो। इसलिए वक्त ऐसा है मेरे अजीजों, इससे सीख सकते हैं हम कि वो टाइम आने वाला है जब आपका हिसाब हो, जब हम सबकी जजमेंट हो, तो उससे पहले हमें होशियारी करनी है, ताकि हम जो कुछ खुदा ने हमें जिन चीजों का जिम्मेदार बनाया है उनमें हम दयानतदारी इस्तेमाल करना शुरू करें। आमीन। तौबा करके, इसने तौबा नहीं की, इसने अपने मालिक से माफी नहीं मांगी, इसने ये नहीं कहा कि मैंने गलती की है, इकरार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अपने लोगों के लिए कि अगर कोई तौबा करता है, अगर कोई माफी मांगता है, तो वो कामयाब हो जाता है। खुदा उसे माफ कर देता है और खुदा उसे फिर से बहाल कर देता है। आमीन। ये खुदा की मोहब्बत है आप लोगों के साथ। खुदा इसके बारे में इसकी तारीफ कर रहा है कि इसने एक्टिवली काम कैसे किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो वक्त आने वाला है, आज आपको एक्टिवली काम करना है। पौलुस रसूल लिखता है कि वो शाम, वो रात आने वाली है और हमें दिन का काम दिन को ही खत्म करना है। जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, जो कुछ हम मसीह के लिए कर सकते हैं, वो हमें दिन ही में करना है। आमीन। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है और हमें जो चूज करना है, इस शख्स ने एक चीज को चूज किया, वो मटेरियलिस्टिक चीज है, दुनियावी चीज को चूज किया, रुपए पैसे को चूज किया, दौलत को चूज किया और उसी के लिए उसने कोशिश की। पर आप क्या चूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप खुदा को चूज करते हैं ताकि उससे मोहब्बत रखें? खुदा ने आपको चुना है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है खुदा ने आपको एक मकसद के लिए चुना है, और वो मकसद क्या है कि आप फल पैदा करें। क्या करें? आप फल पैदा करें, फल लाएं उसके लिए। इसलिए उसने चुन के दूसरों से अलग किया है। अब आपको इस बात का सबूत देना है कि मैं वाकई ही खुदा के लिए फल पैदा कर रहा हूं, मैं वाकई ही खुदा की खिदमत कर रहा हूं, वाकई ही खुदा के साथ मेरा रिश्ता जो है वो मजबूत है, वाकई ही मेरी जिंदगी की जो टेस्टमनी है वो खुदा के लिए, यानी लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। आमीन। जब आपकी टेस्टमनी बेहतर होगी, अच्छी होगी, आपके वसीले बहुत सारी जिंदगियां खुदा बदलेगा। आमीन। तो ये चीज हमें करनी है कि हम दुनियादारी की चीजों में, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना जाएं। इसलिए कलाम में लिखा है दुनिया के हम शक्ल ना बन जाएं। अगर कोई गलत काम कर रहा है या कोई चीजें इस तरह डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते, आप उस तरह ना करें, बल्कि आप खुदा के साथ जुड़े हैं तो आपको वही कुछ करना है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। आमीन। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल भी करोगे।
सो हमें खुदा के हुक्मों के ऊपर अमल करना नहायत जरूरी है मेरे सीसो। इसलिए दौलत, मटीरियलिस्टिक, जिस्मानी बरकतें जो हैं ये यहीं रह जानी है। बहुत सारे लोग अपने काम की वजह से खुदा के साथ रिश्ता मजबूत नहीं रख पाते। वो कहते जी बिजी बहुत है, मसरूफ बहुत ज्यादा है, ड्यूटी हमारी जो है वो बड़ी सख्त है, हम खुदा के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, दुआ का टाइम नहीं निकाल सकते, रिश्ते को मजबूत करने का टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन सेकुलर चीजों के लिए अगर उनको बोले किसी शादी में जाना है, फिर वो टाइम निकाल लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। फिर बीमार ना भी होन ते आर्टिफिशियल बीमार भी हो जाते हैं, जबरदस्ती बीमार भी हो जाते हैं। फिर भले कुछ भी हो जाए लेकिन छुट्टी ले लेनी है। क्यों? क्योंकि वो चीज अपने दिल को अच्छी लगती है, जो कुछ करना है वो कर लेते हैं। मैं कहता हूं कोई शायद ही कोई ऐसा काम हो जो इंसान नहीं कर सकता, जिसे वो करने का इरादा कर ले उसे वो पूरा कर सकता है। खुदा ने जब इंसान की जुबानों को बदला तो वो बुर्ज बना रहे थे और बनाते बनाते बहुत ऊंचा चले गए, तो उन्होंने ये कहा, ये मैं जो है वो बाबल के वहां पे बुर्ज की बात कर रहा हूं, जब वो बहुत ऊंचा जो है वो बुर्ज लेकर जा रहे थे, जहां पर खुदा ने जुबानों में इख्तलाफ ला। तो खुदा ये बात कह रहा है, क्या कह रहा है? खुदा कहते हैं कि इंसान ने इस बात का इरादा कर लिया है कि वो खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आओ हम जाकर इनकी जुबानों में क्या कर दें, उनको सेपरेशन डाल दे, जुबानों को अलग कर दे, ताकि ये एक दूसरे को समझे। क्योंकि जिस बात का इन्होंने इरादा कर लिया है ये उसे पूरा करेंगे। सो इंसान जिस बात का इरादा कर लेता है वो उसे जरूर कर लेता है। खुदा ने इंसान के अंदर ये एबिलिटी रखी है, इंसान के अंदर ये खूबी रखी है। सो आज से आप भी इस बात का इरादा करें, मैं अपनी जिस्मानी बरकतों के ऊपर खुदा को सबसे ज्यादा तरजीह दूंगा। आमीन। मेरी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा जो है वो खुदा को होगा। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का दर्जा सबसे पहले है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी हर चीज तरतीब से होना शुरू हो जाएगी। असल में खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है, लेकिन इंसान अपने जिस्म की ख्वाहिशों की वजह से, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की वजह से उस तरतीब को चेंज कर देता है। वो सोचता है शायद मैं कोई 5-10 घंटे ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा वो जो है पैसे तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जिसने उन पैसों को होल्ड करवाना है, जिसने आपके घर को कायम रखना है, वो पैसों से हर चीज नहीं कर सकते आप। खुदा के फजल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कलाम कहता है अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की क्या है, मेहनत अबस हो जाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी बिल्कुल कम है पर वो बड़ी सुकून की नींद सोते हैं और खुदा उनकी हर जरूरत को पूरा कर देता है। आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े अमीर हैं लेकिन सो नहीं सकते, मेडिसिन लेके सोना पड़ता है, दवाइयों के बगैर उन्हें नींद नहीं आती। वो कुछ अपनी मनपसंद चीजें खा नहीं सकते उस तरह से आजादी के साथ। किसी को शुगर है, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदा को अगर आप अव्वल दर्जे पे रखते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर हर चीज तरतीब में आना शुरू हो जाती है। आमीन। याद रखिए नंबर 1 पे क्या है जी, आपकी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा किसका है? खुदा का है। इसलिए हमेशा उसे सर्व कीजिएगा। आमीन। खुदा ने इसी तरह एक मुख्तार खड़ा किया पुराने अहदनामा में, उसका नाम यशुआ है। कौन सा मुख्तार खड़ा किया? अपनी कौम बनी इस्राइल को लीड करने के लिए एक मुख्तार खड़ा किया, एक लीडर खड़ा किया, उसका नाम यशुआ है। और जब लोग बुतों की पूजा करने लगे, लोग रुपए पैसे और मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाने लगे, तो उसने उन्हें कहा, सबको इकट्ठा कर लिया, उसने कहा आज के दिन तुम डिसाइड कर लो कि तुमने किसकी इबादत करनी है। रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम सिर्फ खुदा की वर्शिप करेंगे। हालेलुया। हम सिर्फ खुदा को चुनते हैं, उससे बढ़कर कोई और नहीं होगा। और आप देखें ये वाहिद शख्स है, ये और फिनहास, ये दोनों शख्स ऐसे हैं जो बनी इस्राइल मिस्र में से निकले बनी इस्राइल के साथ, और ये वो शख्स हैं जो वादा की हुई सरजमीन में दाखिल हो सके। अदरवाइज जितने भी बाकी लोग थे 40 साल से नीचे सब मर गए थे, कोई भी जिंदा नहीं रहा। लेकिन ये 2 शख्स ऐसे हैं जो उस मुल्क में गए और ये लीड करते हुए उस मुल्क में गया। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि मेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा का है। आमीन।
میں نے یہ چوز کر لیا کہ میں ایک ہی مالک کی خدمت کروں گا اور وہ مالک میرا خدا ہے. آمین. کیا آپ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو ہر چیز کے اوپر رکھیں گے؟ ہاللیلویا. اپنے گھر کے بچوں کے اوپر، اپنی فیملی، اپنی وائف، اپنے رشتہ داروں کے اوپر سب سے پہلے نمبر پہ رکھیں گے، تاکہ ہر بندے کو پتا چل جائے، ہر کسی کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ خدا سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اکثر الٹا ہوتا ہے. ہمیں کوئی کام آ جائے تو ہم اپنی دعا کو روک لیتے ہیں. ہمیں کوئی چیز کام کرنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں چلو آج چرچ رہن دئیے، کوئی گل نہیں، آج اگنور کر دیتے ہیں. اور رشتے دار بھی انہوں نے پتا انہیں چرچ جانا ہے، انہوں نے بھی اسی ٹائم ہی آنا. اسپیشلی جب آپ کی دعا کا ٹائم ہے، فون آ جائے گا پاکستان میں، بڑی ضروری گل کرنی. آپ کا کلام پڑھنے کا ٹائم ہے، فون آ جاتا ہے، فلاں دوست کا فون ہو گیا. اور بیماراں سارے دا فون ہونا، جنہوں نے پیسے لینے انہوں دا ہی فون ادو ہی ہونا. جب آپ کی دعا کا ٹائم ہے، آپ کمپرومائز نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں، چاہے آپ کے مہمان آئے جتوں مرضی آ جان، پاویں چند تو ہو کے آ جان، کہو تسی ہونا ہے بوو گھر، نہیں تو پہلی گل ساڈے نال چلو، دعا کرو. اور اگر نہیں تو گھر رہو، اسی دعا کر کے آواں گے، چرچ جا کے آواں گے، پھر آ کے تیری خدمت کران گے. اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آج دے دن اتنے اپنے گھر ہی رہو. یاد رکھیں اس بات کو. آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، خدا کے نام کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز نہ کریں. خدا آپ کے ہر ایکشن کو جانتا ہے، یاد رکھیے گا. خدا آپ کے ہر کام کو جانتا ہے، آپ کی زندگی کی ہر چیز سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہوئی. جو ٹائم خدا کا آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، خدا کو ضرور دیجیے گا. آمین. اس لیے کلام کہتا ہے جو کیسر کا ہے کیسر کو دے دیں، جو دنیا کی چیزیں ہیں دنیا کو دے دیں، لیکن جو خدا کا ہے وہ دے چ ڈنڈی مارنا بند کر دو، اس میں چیٹنگ کرنا بند کر دے. سارا دن بیزی رہ کے کام کر کر کے شام کو جب بالکل تھک جاندے ہیں، جب 11 بج جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار صبح ڈیوٹی بھی جانا، اب سو جائیں جلدی جلدی. بھائی جو ٹائم خدا کا تھا وہ آپ نے دے دیا خدا کو، جو چیز آپ نے کمٹمنٹ کی تھی وہ خدا کو پوری آپ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کے اندر خدا اور زیادہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا. یہ آپ کی وفاداری ہے، یہ آپ کی خدا کے ساتھ دیانتداری ہے، یہ آپ کی آنیسٹی ہے کہ آپ کو کوئی نہ بھی پش کرے، کوئی نہ بھی کہے، لیکن پھر بھی آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اتنے تکا سٹارٹ نے آپ کو پتا نا، جو گاڑیاں تکا سٹارٹ نے بار بار پلگ صاف کرنا پہنتا، انہوں دا بار بار انہوں نے میسج کرنا پہنتا، فون کرنا پہنتا، بھائی جی چرچ آئے جے، بھائی جی دعا ہے، عبادت ہے، ضرور آنا. بہت سارے لوگ ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وداؤٹ نوٹیفیکیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے. جس طرح آپ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، آپ بتائیں ذرا، کوئی مینیجر آپ کو فون کر کے کہتا ہے بھائی جی صبح تیری ڈیوٹی آیا جے، آپ خود جاتے ہیں؟ گڈی بھیج دینے؟ نہیں بھیجتے. آپ ادھر بس لے کے چلے جاتے، بارش ہو رہی ہو کچھ بھی ہو تو گڈی لے کے چلے جانے، باہر سے آپ نے ٹیکسی کروا کے چلے جانا. چرچ آنے کے لیے بہانے. پہلی گل کی ہے جی کنوینس کو نہیں آگی، کوئی بندہ بھیجو گڈی. پہلے جب شروع میں چلتے تو ہم سب کو پہلے اٹھا کے لاتے، پھر چرچ صاف کرتے، پھر سسٹم لگاتے، پھر عبادت شروع ہوتی تو کلام سناتے تھے. پہلے ہمارا یہ طریقہ کار تھا. جے تسی گڈی لے کے نہیں پہنچے، انہیں کہنا پاس صاحب تسی آئے ہی نہیں، اسی آئے کوئی نہیں. اس طرح ہم نے جو ہے وہ چرچ کا آغاز کیا. لیکن شکر ہے خدا کا، اب بہت ساروں کے پاس اپنی کنوینس ہے، اور بہت سارے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انہی کاموں میں مصروف رہے تو پھر خدمت کا کام تو ہو گیا. اگر آپ دعا میں نہیں ٹھہرتے، یہاں آنے سے پہلے کلام نہیں پڑھتے، دعا آپ کا مائنڈ لگا ہے بھائی فلاں کو پک کرنا ہے، بس کو بھی پک کرنا ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے، آپ کا دھیان کلام پہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ادھر آ کے کیا سنانا ہے؟ پھر پرپٹ پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جو خادم کی خدمت ہے اس کو اس کی خدمت رہنے دے تاکہ وہ اس میں دیانتدار رہے. خادم نو فون کر دیں پاس صاحب میرا سلنڈر مک گیا، کوئی دکان ہے تیرے نیڑے؟ یار پاس صاحب اگر سلنڈر لبے گا تیرے کو کوئی بندہ نہیں سلنڈر تین دے سکتا.
अब मुझे कई लोग ऐसा भी फोन किया, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कि पास साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आप सोचें कि छोटी छोटी बात के लिए भी कई दफा इस तरह की चीजें, भाई जो जिम्मेदारी खुदा ने उन्हें दी है उन्हें पूरा करने दीजिए। जो जिम्मेदारी खुदा ने उन्हें दी है उनको पूरा करने दीजिए, उसमें डिस्टरबेंस ना दें ताकि वो अपनी खिदमत को प्रॉपर तौर पे कर सके। थैंक यू। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि जो जो जिम्मेदारियां, जो जो खुदा ने बरकतें आपको दी हैं, सही तौर पे इस्तेमाल कीजिए, उनको प्रॉपर तौर पे इस्तेमाल कीजिए। आमीन। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी शख्स जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। आपका ध्यान एक की तरफ ही रहेगा, आप एक को ही खुश कर पाएंगे प्रॉपरली। जिसे भी करना है एक को ही खुश करना है, ये आधे आधे वाला चक्कर नहीं है। कलाम कहता है नीम गरम नहीं बनना। नीम गरम कहते कोसा कोसा पंजाबी, हाँ जी, कोसे नहीं रहना, या तो गर्म हो जाए या फिर ठंडे रहें। ठीक है जी। सो इसलिए जरूरी है कि एक चीज को फॉलो कर लें, आप खुदा को पकड़ें और फिर खुदा को कभी ना छोड़ें। आमीन। अपने घर की तरतीब भी इसी तरह बनाइएगा। नंबर 1 सबसे पहले क्या है जी, सुबह उठते ही खुदा की शुक्रगुजारी करें, दुआ करें, खुदा का अव्वल दर्जा सबसे पहले खुदा को दीजिएगा। आपके घर के अंदर भी तरतीब इसी तरह से होनी चाहिए। नंबर 1 खुदा है, उसके बाद आपका जीवन साथी है अगर कोई शादीशुदा है, और उसके बाद फिर उसके बच्चे हैं नंबर 3 पे, और फिर उसकी जो है वो जॉब है, फिर उसकी अपनी फैमिली है। इस तरह से ये तरतीब है खुदा के कलाम में से, ऐसे ही है। ठीक, अगर आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे तो फिर आप बाबरकत हैं। आमीन। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर हर चीज को तरतीब के साथ ले आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि हमारे घर में बेतरतीबी बड़ी है, बेचैनी बड़ी छाई रहती है, समझ नहीं आती करना क्या है। तो भाई आप अपनी तरतीब ठीक करें, खुदा सब कुछ ठीक कर देगा आपकी जिंदगी के अंदर। आमीन। नंबर 1 खुदा जो हर चीज को कंट्रोल करता है, जब आप अपनी सारी चीजें उसके हाथ में दे देंगे तो बाकी सारी चीजें उसने खुद ब खुद ही कर देनी है। आमीन। सबसे पहले खुदा के पास जाएं, उसके कदमों में झुकें। और यहां पर ये नौकर को हम देखते हैं कि ये नौकर दुनियादारी की फिक्र में लग गया, उनकी चीजों को सीधा करना शुरू कर दिया, पर ये फिर भी उनको सीधा नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बताता हूं, जो कुछ आप खुदा को देंगे खुदा हर चीज तरतीब में कर देगा। आमीन। जो कुछ खुदा को देंगे आप, जो कुछ आप खुदा के सामने रखेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी को खुदा के सामने रखेंगे, खुदा उसे तरतीब में ले आएगा। आमीन। आपकी सारी चीजें तरतीब में होना शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर जो हर तरफ बेचैनी है, परेशानी है, वो सारी ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, तरतीब में आना शुरू हो जाएंगी। लोग हैरान हो जाएंगे आपकी जिंदगी को देख करके, जिंदगी में हुआ क्या है। सिर्फ एक चीज को चेंज करें, खुदा को नंबर 1 पे लेकर आए जरा। आमीन। लेकिन सब तो बहुता कंप्रोमाइज इसी जगह तक कर ले। कौन सा खुदा साथ है, कोई बात नहीं, वैसे दारे नूरे मार लेने, हाँ जी मैं यस्सु ना प्यार करना, यस्सु से मोहब्बत करता हूं। लेकिन जब यस्सु कुछ करने को कहता है तो फिर कीता नहीं जाता। अगर आप 18वें बाब में जाएं तो यहां पर एक अमीर शख्स है, बड़ा अमीर है, दौलतमंद है, और वो सरदार है। 18वीं आयत में, 18वें बाब के 18 में तो लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या पूछ रहे हैं उस्ताद से आगे जी, बोले आप क्या पूछ रहे? ए उस्ताद मैं क्या करूं? क्या करूं का मतलब ये कि एक्शन करने को पूछ रहा है कि उस्ताद जी को काम दसो मैं करा। क्या कह रहा है ये? पंजाबी में बोल रहा हूं। क्या कह रहा है? उस्ताद जी कोई काम दसो मैं करा ताकि मैं क्या कर सकूं, हमेशा की जिंदगी ना। जो उस्ताद जी काम दसन लगे ना, देखना फिर की करता। हाँ जी, यस्सु ने ये सुनकर के उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात। उत्ते जेड़ा ना उन्होंने यस्सु ने कहा, तू सारे हुक्म मान। वो कहता जी मैं हुक्म सारे बचपन तो पूरा करदा रहा, कोई ऐसा हुक्म नहीं जेड़ा मैं छड्ड नहीं रहा। यस्सु ने कहा एक गल दी कमी है, हुण मैं तेनू काम दसन लगा जेड़ा तू करना है। ठीक है जी, सुनिएगा। अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद शख्स था। कौन सी चीज उसे पसंद थी जी?
दौलत पसंद थी, वो दौलतमंद शख्स था। अब उस्ताद ने काम बताया, क्या कर, अपना सारा कुछ बेच, तो बेच के क्या कर दे, गरीबों को दे, और फिर मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर एक खजाना मिलेगा। अब बताइए, ये बंदा सीरियस है काम करने के लिए? वो बड़ा ही गमगीन हो गया, दुखी हो गया, और यीशु को छोड़ के चला गया। पहले क्या कह रहा था, उस्ताद जी मुझे कोई काम बताएं, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो जब उस्ताद ने कहा, भाई जी खुदा के हुक्मों को माने, कहते जी मैं तो बहुत मान रहा हूं, बचपन से मानता चला आ रहा हूं, सब चीजें मैं करता हूं। तो उसने कहा, फिर एक ही चीज की कमी रह गई है, क्योंकि तू दौलतमंद बहुत है, तेरा दिल जो है वो तेरी दौलत पे लगा हुआ है। कलाम कहता है, जहां तेरा माल है वहां पर तेरा दिल लगा रहेगा। तेरा दिल जो है वो तेरी दौलत के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कर, अपनी दौलत को बेच, और फिर क्या कर, मेरे पीछे हो ले, और साथ में उसे गुड न्यूज दी कि तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। तो वो सुन के गमगीन हो गया, भाई जी मेरे को इतना पैसा, मैं किवें इतना पैसा गरीबां नूं दा, कैसे दे सकता हूं मैं, कैसे मैं जो है वो फंड रेजिंग कर सकता हूं, कैसे मैं लोगों को दे सकता हूं जो मुसीबत में है, परेशानी में, दुख में है। बिल्कुल देने को दिल नहीं। ये गमगीन हो गया, दिल बुझ गया, क्योंकि दिल किसके साथ लगा हुआ है, दौलत के साथ। जिनका दिल दौलत के साथ लगा हुआ है ना, उन्हां दे नाल बिल्कुल इंज ही हुंदा है। जब खुदा के लिए कुछ देना पड़े, जब खुदा की खिदमत करने के लिए कुछ पड़े, तो दिल नूं फिर होल पैंदे। 200 रुपया दे देना चर्च, 100 रुपया चर्च नूं दे देना। लेकिन याद रखें, इसके इवज आपको जो कुछ मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। यीशु ने कहा, आसमान पर तुझे क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। और मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, अपने लिए माल किथे जमा करो, आसमान पर जमा करो। आसमान पर माल कैसे जमा होता है, जब आप अपना माल गरीबों को दें, जब आप अपना माल खुदा की खिदमत के लिए सर्व करें, जब आप अपना माल जरूरतमंदों को दें, आपके लिए आसमान पे खजाना जमा हो रहा है। और खुदा आपकी नीयत से वाकिफ है, आपके दिल से वाकिफ है कि आपने किस पर्पस के लिए ये काम किया है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई कहे कि जी मैं हुन दे दीता तो मेरा नारा ना मारिया तो मैं नाराज हो जाना, या मैनू मेरा अनाउंसमेंट नहीं की थी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। खुदा आपकी हर चीज का हिसाब रखता है। आमीन। आपका हर काम, चाहे वो आप सबके सामने करें या आप किसी के ना होते हुए भी वो काम करें, खुदा के सामने हर चीज खुली हुई है। आमीन। सो मेरे अजीजों, बताने का मकसद आपको ये है कि अपनी मटीरियलिस्टिक बरकतों की जगह पे अपने दौलत, रुपए, पैसे से बढ़कर अपने खुदा से प्यार कीजिए। आमीन। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। कई दफा लोग इस बात की कंप्लेन करते कि हम इतने पैसे कमाते हैं, महीने की सैलरी हमारी बहुत अच्छी है, पर आधा महीना भी नहीं गुजरता कि हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। अगर आप पुराना ऐहदनामा पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं तेरी थैलियां च सराख कर देंगा अगर तू खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चलता तो। अगर खुदा की लिए तू कोई खिदमत नहीं कर पाता तो फिर आपको पता नहीं चलता, आपकी थैलियों में सराख। सराख का मतलब क्या है, ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, इसको ये हो गया, घर में ये नुकसान हो गया, एसी सड़ गया है, फ्रिज सड़ गई है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हो गई है। सारे पैसे इसी तरह निकल जाते हैं, जिस तरह आते हैं उसी तरह वापस चले जाते हैं, ठहरते नहीं है। पर अगर आप खुदा के साथ जुड़े हैं और आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो खुदा आपकी कमी में भी आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि खुदा आपकी मदद कहां से लेके आ सकता है। सो ये शख्स जो है वो अमीर तरीन शख्स है। अब करने के लिए जब उस्ताद ने बोला है तो अब इससे हो नहीं रहा, अब हिम्मत को नहीं आगे, अब दिल कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि दौलत से मोहब्बत है, और जो कोई दौलत और दुनिया से प्यार करता है वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। इसलिए जिन्होंने खुदा के लिए अपने आप को दिया है उन्होंने सब कुछ दे दिया अपना अपना खुदा। जहां पे मसीह आता है वहां पे से दौलत की मोहब्बत निकल जाती है। आप ज़कई की एग्जाम्पल देखें, यीशु ने उसकी जिंदगी में कदम रखा, उसके घर में कदम रखा, नजात उसके घर पे आई, और उसका पहला रिजल्ट क्या निकला जी,
وہ کہندا جی میں اپنا ادھا مال جڑا غریباں نو دینا. یہی کہا اس نے. اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو 4 گنا اسے واپس کروں گا. امیجن کریں, اگر کسی کے 10 روپے لیے تو 40 روپے واپس دے گا. اب سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ مسیح کے آنے کی بات ہے, یہ محبت ہے مسیح کی, یہ پیار ہے خدا کے ساتھ اس کا. اور وہ دولت مند شخص تھا, ٹیکس کلیکٹر جو تھے ان کا, وہ اس لیڈر تھا, ان کا سردار تھا جو محصول لینے والے ہیں, یعنی اس کے پاس ٹھیک ٹھاک روپیہ پیسہ تھا اور اس نے اپنا آدھا پیسہ جو ہے وہ غریبوں کو دے دیا. ایتھے بھائی یاراں نو کیا ہے, اے بھائی یاری نال ہی کہندے بس میرا کام ہو گیا استاد جی. کئی لوگ دکھاوے کے لیے یسو کے نعرے مارتے ضرور ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر لیں گے, تے جدوں استاد کم کہہ دے ادوں نالے پھر نکل جاتے ہیں, بھائی اب نہیں ہو سکتا کام. سو میرے عزیزو یاد رکھیے گا, دنیا سے محبت نہ کریں کیونکہ دنیا کی چیزیں مٹنے والی ہیں, دنیاوی چیزیں ختم ہو جائیں گی, دولت بھی یہی رہ جانی ہے, شہرت بھی یہی رہ جانی ہے, ہر چیز, یہ خوبصورتی, جوانی, ہر چیز ختم ہونے والی ہے. ایک ہی چیز باقی رہ جانی ہے اور وہ خدا کا نام ہے. ہاللیلویہ. اور وہ اس کا کلام ہے. اس لیے اس کے کلام کے اوپر توجہ دیجئے, خدا پہ فوکس کیجئے. ان چیزوں کو, یہ دوسری چیزیں یہ سیکنڈری ہیں, یہ دوسرے لیول پہ جاتی ہیں, تاکہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. آج اس بات کا فیصلہ ضرور کریں کہ مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے. لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خدا کے نام کی خاطر, جنہوں نے انجیل کی بشارت کی خاطر اپنی جان دے دی. وہ اپنی جان کو محفوظ کر سکتے تھے, پر اپنے خدا کے نام کی خاطر, اپنے خدا سے محبت کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی. اور مسیح یسو کے جتنے بھی شاگرد ہیں, انہوں نے سب نے اس کلام کو پورا کرنے کے لیے, انجیل کی بشارت کے لیے اپنی جان دی ہے. یوحنا رسول کے علاوہ ایون میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی ہے. میرے عزیزو, جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. پالوس رسول کہتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی؟ روپیہ, پیسہ, تنگی, مصیبت, دکھ, تکلیفیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر دے. اس لیے میرے عزیزو, روپیہ, پیسہ یا دولت آپ کے خدا کو ریپلیس نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی میں ہمیشہ اسی کا اول درجہ رہنا چاہیے, اسی کا پہلے نمبر پر نام رہنا چاہیے. ہمیشہ اس کو سرو کریں, اس کی خاطر اگر اپنی جان بھی دینی پڑے تو کبھی بھی اس بات سے دریغ نہ کریں, کیونکہ جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. ہاللیلویہ. زندگی کا وہ تاج ملنے والا ہے. کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا اسے زندگی کا تاج ملے گا. لیکن روپیہ, پیسہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ وقتی طور پہ ہے, یہ ہماری ضرورت کے لیے ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں اس کے وسیلہ سے. لیکن اکثر مقصد یہ نہیں کہ روپیہ, پیسہ حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے خدا کو بھول جائے, اپنے خدا کا انکار کر دے. کئی لوگ روپے, پیسے کی خاطر, کو خوبصورت جیون ساتھی کی خاطر اپنے خدا کا انکار کر دیتے ہیں, جا کے دوسرے مذہب میں شادیاں کر لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا لڑکا, ایک اچھی لڑکی مل گئی ہے, ہمیں روپیہ پیسے والا بندہ مل گیا ہے, بڑا امیر ترین شخص مل گیا ہے, یا ہماری ڈیزائر تھی کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں. آپ خدا کی مرضی کو سب سے پہلے پورا کریں گے جو خدا چاہتا ہے. جب آپ اس طور سے چلیں گے تو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر خدا بدلے گا. آمین. وہ زندگیاں جنہوں نے خدا کو پسند, خدا کو قبول کر لیا ہے, جنہوں نے مسیح یسو کو پہن لیا ہے, جو یسو سے محبت رکھتے ہیں, ان کی زندگیاں مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں, تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ چاہے دکھوں میں سے بھی گزریں, خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. بے شمار لوگ ہیں جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کی خاطر جانیں دی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ان ساری چیزوں کے بارے میں. آج ہمارے ملک کے اندر, ملک پاکستان میں, انڈیا کے اندر اور اس طرح کئی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, مسیحی ایمان کی خاطر لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں.
वो भी अगर बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, लेकिन जो कोई मसीह की खातर अपनी जान देगा वो अपनी जान को एक्चुअली बचाएगा। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदा का फजल आपके ऊपर रहे। आसमानी बाप, तेरे बेटे बेटियों को मैं ब्लेस करता हूँ, यस्सु के लहू में इन्हें कवर करता हूँ। आज का कलाम इनकी जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लाए, यस्सु के जलाली नाम में। आमेन, आमेन एंड आमेन। 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस बात के लिए कि हमने कुछ फंड रेज किया जड़ावाला के लिए। जो आपको पता है वहां पर एक बहुत बुरा सान्या हुआ, वहां पर पूरी बस्ती को आग लगाई और बहुत सारे घर चर्चेस जलाए गए। तो हमने बड़ी क्विकली विद इन 3 डेज जो है वो हमने 2000 यूरो जो है वो जमा करके उनको क्विकली भेज दिया था। क्योंकि भाई आतिफ जो है वो जा रहे थे, तो हम चाहते हैं कि वो खुद वहां पहुंचकर जो है वो उन जरूरतमंद लोगों तक जो है वो अपना जो हमने यहाँ से पैसे भेजे हैं उनकी मदद कर सके, क्योंकि ये दुख की घड़ी है और हमें अपने भाई बहनों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसके साथ आप सब ने, जितने बहन भाइयों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं आप सबको आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको अप्रिशिएट करता हूं और खुदावंद इसके एवज आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। क्योंकि आप उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं इस तकलीफ में, इस दुख में, जब उनके ऊपर जुल्म बर्पा किया गया है। तो मेरे अजीजों, ये हमारी, मैं समझता हूं, रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की जिम्मेदारी है कि हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ में भी खड़े हों और उनके साथ फाइनेंस में भी, जैसे उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, खड़े हों। इसके साथ साथ हमें आज जो है वो द ग्रेस ऑफ गॉड फेलोशिप चर्च यहाँ पर माल्टा में है, माल्टीज कांग्रीगेशन है, उनके पास्टर हैं मारियो और उसके साथ ब्रदर जेसन हैं, जिनके दिल में खुदा ने ये बात डाली कि वो इस वाक्य के लिए डोनेशन जो है वो हमें भेजें। तो उन्होंने कुछ डोनेशन भेजी है, ये लेटर भी उन्होंने साथ में भेजा है पास्टर मारियो ने। सो मैं उनको जो है वो थैंक्स कहना चाहता हूं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू पास्टर मारियो, ब्रदर जेसन एंड द होल कांग्रीगेशन एज वेल, कि उनका शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी इस दुख की हालत में हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को याद रखा और वो उनके लिए जो है वो मदद करने के लिए तैयार हुए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर में भी जो है वो जरूर उनकी मदद करेंगे। ये छोटा सा लेटर है, इसमें उन्होंने यही लिखा है कि खुदा ने हमारे दिल में डाला है कि हम पाकिस्तानी जो क्रिश्चियन हैं उनकी मदद के लिए जो है ये डोनेशन दें, ये रुपया पैसा भेजें, और हम इसके वसीला से ब्लेस करना चाहते हैं अपने बहन भाइयों को। और प्लस फ्यूचर में भी इसी तरह हम चाहते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल करे और हम पाकिस्तान में जितने मसीही रहते हैं उनकी मदद कर सकें, उनकी रहनुमाई कर सकें। और अगर हम रुपए पैसे के वसीला से और जिस तरह भी वो हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट करते हैं, सो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एंड मैं अपनी कांग्रीगेशन की तरफ से और अपने द चर्च ऑफ सेक्रेड अनॉइंटिंग की तरफ से मैसेज देना चाहता हूं। एंड आई गिव थैंक्स टू ऑल द कांग्रीगेशन ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड फेलोशिप को, ताकि खुदा इन्हें और ज्यादा बरकत दे, खुदा इन्हें ब्लेस करे। मे गॉड ब्लेस देम अबेंडेंटली, कि वो इसी तरह से अपना दिल खोलकर दूसरे मसीही बहन भाइयों के साथ खड़े हो सकें दुख में। हम उनके शुक्रगुजार हैं और आप सबके भी जितने बहन भाइयों ने पार्टिसिपेट किया, मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूं इस बात के लिए। और हम अभी दूसरी टर्म में कुछ और पैसे भेजेंगे, जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सके वो भी कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू सेंड अगेन। सो जितना हमसे हो सकता है हम जरूर करेंगे। अभी हमने जो है जो डोनेशन कलेक्ट किया है 6.5 लाख रुपया हमने भेजा है, और अभी जो है वो हम खुदा के फजल से और भी भेजेंगे। ठीक है, सो आप सब भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है, कुछ चर्च की तरफ से, कुछ आप लोगों की तरफ से लास्ट संडे का जितना हदिया हुआ था वो सारे का सारा हमने वहां पर भेजा है। और इसी तरह ये डोनेशन जो ग्रेस ऑफ गॉड फेलोशिप ने हमें भेजी है, we will soon send this donation to the victims of जड़ावाला, फैसलाबाद में जो victims हैं उन तक हम जरूर भेजेंगे, ताकि खुदा उनकी मदद करे, उनको मजबूत करे और वो ईमान में हमेशा खड़े रहें। आमीन। ये वो लोग हैं जो अपने ईमान की वजह से दुख उठा रहे हैं। याद रखिएगा, हमसे नफरत जो है वो मसीही होने की वजह से की जा रही है। आपके साथ जो नफरत है या आपके ऊपर लान तान है, तशद्दुद है, लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो मसीही होने की वजह से किए जाते हैं। पर हम ईमान रखते हैं कि जो कोई आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। आमीन। और मसीह यस्सु ने ये सारी बातें हमें सबसे पहले कही कि मेरे नाम की खातिर लोग तुमसे अदावत रखेंगे। सो हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं
ऑलरेडी एक्सेप्ट करते हैं। और मसीही जिंदगी में आपको बताना चाहता हूं, दुखों की जिंदगी है, आसान जिंदगी नहीं है। ये वो सुकड़ा रास्ता है जिसके ऊपर जाने वाले बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो जाने वाले हैं, जो उस रास्ते पे चलते हैं, वो मुबारक लोग हैं खुदा के, जिसके लिए खुदा भी उन्हें कहेगा कि ए यीशु भी उन्हें कहेगा, ए मेरे बाप के मुबारक लोगो, ये बादशाहत अपनी मिरास में लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है। आमीन। तो मेरे अजीजों, उनका अजर बड़ा है। खुदा उन्हें इस हालात में खड़ा रहने की तौफीक दे, उन्हें मजबूत करे। आइए हम अपनी